Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our first chapter from our textbook in English, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. A Triumph of Surgery. Triumph means victory, vijay. Of surgery, here surgery means medical treatment. चिकित्सीय इलाज means चिकित्सा इलाज की विजय. In this chapter, James Herriot, a vet surgeon, has given the description of the story of a dog's disease. इस अध्याय में जेम्स हैरियट, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने एक कुत्ते की बीमारी का वर्णन किया है. मिसिस पंफ्रेज डॉग ट्रिकी was seriously ill. मिसिस पंफ्रे का कुत्ता ट्रिकी गंभीर रूप से बीमार था. जेम्स हैरियट treated the dog without medicine or surgery. जेम्स हैरियट ने कुत्ते को बिना किसी दवाई और ऑपरेशन के उसका इलाज कर दिया. Let's start the chapter. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के लिए काफ़ी चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Pull means to stop. I had stopped my car. मैंने अपनी कार रोक दी. When I saw him, जब मैंने उसे देखा in the street गली में with his mistress, अपनी मालकिन के साथ, and I was shocked at his appearance, और मैं उसकी आकृति पर काफ़ी हैरान हो गया. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वह काफ़ी मोटा हो गया था. hugely fat like a bloated sausage, जैसे कि सूजा हुआ मांस, sausage meat, with a leg at each corner, जिसके प्रत्येक कॉर्नर में एक पैर था. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. His eyes, उसकी आंखें bloodshot, बिल्कुल लाल थी, and rheumy, eyes containing lot of water, उन eyes में काफ़ी पानी था. stared straight ahead, और सीधे आगे देख रही थी. Stare means to look closely, and his tongue lolled from his jaws, और उसकी जो जीभ थी वह उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mr. Herriot, Mrs. Pumphrey ने काफ़ी जल्दी की to explain, बताने की. He was so listless. Listless means sad. वह काफ़ी उदास हो गया था. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. ऐसा लगता था कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं रही. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. यहाँ I refers to Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey कहती है, I thought, मैंने सोचा, he must be suffering from malnutrition, के वो कुपोषण से पीड़ित रहा है. सो इसलिए I have been giving, के मैंने उसे देना शुरू दिया him some little extras, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा अतिरिक्त between meals, भोजन के मध्य में, to build him up, उसे strengthen करने के लिए, means उसे मजबूत करने के लिए. some malt, कुछ malt means कुछ जौ, and cod liver oil and a bowl of Horlicks, और एक कटोरा Horlicks at night, रात को, to make him sleep, के वो सो जाए, उसे सुलाने के लिए. nothing much really, ज़्यादा कुछ नहीं. and did you cut down on the sweet things as I told you? क्या आपने कुछ sweet things, जो मीठी चीज़ें हैं, उसकी कम की जैसा कि मैंने आपको बताया था? oh I did for a bit but he seemed to be so weak I had to relent. oh I did, हाँ मैंने किया for a bit, कुछ क्षण के लिए, but लेकिन he seemed to be so weak, वह इतना कमज़ोर दिखाई दिया. I had to relent, कि मुझे थोड़ा soft होना पड़ा. relent, to become soft. he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him.
ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम केक्स काफ़ी पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स भी, और चॉकलेट्स भी, सो इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं सहन नहीं कर पाई टू रिफ्यूज़ हिम, कि उसे मैं मना कर सकूं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं दोबारा फिर उस छोटे कुत्ते की ओर मैंने देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही उसकी समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का इकलौता दोष था वॉज ग्रीड, उसका ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच। he had never been known to refuse food, उसने कभी नहीं जाना था टू रिफ्यूज फूड, फूड मीन्स भोजन को मना करना। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, ही वुड टैकल, वह टैकल कर सकता था, ले सकता था। अ मील भोजन, डील विद, टैकल मीन्स टू डील विद, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन के या रात के किसी भी घंटे वो खा सकता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, एंड आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान था, अबाउट ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे काफ़ी अभ्यास दे रही हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कि ठीक हाँ आप वो, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, कि उसकी कुछ थोड़ी सैर होती है विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन हॉकिन जो कि गार्डनर है, माली है, हैज़ बीन डाउन विद, उसे लुम्बैगो, द पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, जिसे हम बाय का दर्द भी कह देते हैं, लुम्बैगो हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो, इसलिए जो रिंग थ्रोइंग होती थी बाद में, वो अब नहीं होती हैं। मीन्स जो रिंग थ्रोइंग की जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड स्वेयर, मैंने कुछ सख्त होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं अब ये निश्चित तौर पर मानता हूँ। इफ़ यू डोंट कट फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इज गोइंग टू बी रियली इल। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसका भोजन अब कम नहीं करते हैं, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देते हैं, इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वह अब गंभीर रूप से वास्तव में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कि आपको अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक पूरी स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना चाहिए। मिसिज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिज पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा, मीन्स वो चिंतित दिखाई दी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम श्योर यू आर राइट, के मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यह काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ, हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. She set off, वह वहाँ से चली गई, हेड डाउन, नीचे सिर करते हुए, along the road, रोड के साथ, as if, जैसे कि डिटरमाइंड, सुनिश्चित कर लिया हो, टू पुट द न्यू regime, कि उसने जो नया regime है, सिस्टम है, टू पुट द न्यू regime, सिस्टम है जो उसे अभी लागू कर देगी, इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में इमीडिएटली, एकदम। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं बढ़ी हुई चिंता के साथ उनकी प्रोग्रेस को मैंने देखा, मीन्स वो जा रहे थे। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat, he had a whole wardrobe of these coats. Tricky was tottering, trembling, थोड़ा लड़खड़ा रहा था, along in his little, उसके लिटिल छोटे से tweed coat से, tweed woolen coat में था वो। he had a whole wardrobe, उसके पास पूरी अलमीरा थी, of these coats, इस तरह के coats की। for the cold weather and a raincoat for the wet days, cold weather के लिए, and और raincoat भी था एक, wet days means rainy days, बारिश के दिनों के लिए। he struggled on drooping in his harness, he struggled on, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष किया उसने। ड्रूपिंग, विदरिंग इन हिज हार्नेस, उसे प्रॉब्लम हो रही थी इन हिज हार्नेस, अपने मटेरियल में, हार्नेस यानी जो उसने पहन रखा था, हार्नेस मटेरियल। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं होगा, बिफोर आई हर्ड, कि मैं
मिसिज पंफ्रे से कुछ सुनूंगा, मीन्स का मतलब उससे मेरी बात होंगी, मीन्स उसकी कॉल उसके लिए आएगी, ऐसा मिस्टर हैरियट मान रहा था. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज. द एक्सपेक्टेड कॉल, जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, जिसकी आशा थी, वो कॉल केम, वो आई विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में. मिसिज पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसिज पंफ्रे काफ़ी नर्वस थी. डिस्ट्रॉट मीन्स नर्वस, परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ नहीं खाया उसने. रिफ्यूज कर रहा था, मना कर रहा था अपनी फेवरेट डिशेज को भी. एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको कुछ उल्टियों के दौर भी हुए थे. बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. He spent all his time lying. He spent all his time lying on a rug, panting. वह अपना पूरा समय लेटे हुए बिताता था. उन्हें rug means कारपेट पर. rug means कारपेट. panting, हाँफते हुए. didn't want to go for walks, didn't want to do anything. न तो सैर के लिए जाना चाहता था और न ही कुछ और करना चाहता था. I had made my plans in advance. मैंने एडवांस में ही अपनी योजनाएं बना ली थी. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. द ओनली वे, अकेला रास्ता, मीन्स एक तरीका, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर रखने का उसे, ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, मीन्स उसे घर से बाहर रखना जरूरी था उसके इलाज के लिए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने उन्हें सुझाव दिया दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे अस्पताल में भर्ती किया जाए. फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए. फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 days. टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, के उसे रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण में. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. जो बेचारी लेडी थी वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई. सून्ड, अनकॉन्शियसनेस. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे. she was sure, वह सुनिश्चित थी. he would pine, विलाप, वह रोने लगेगी, मीन्स. एंड इफ he didn't see her every day, अगर वो उसे प्रत्येक दिन नहीं देखेगी. बट आई took a firm line, लेकिन मैंने उन्हें निश्चित रूप से बता दिया. ट्रिकी was very ill and this was the only way to save him. कि मैंने उन्हें बताया कि ट्रिकी काफ़ी बीमार था और यही अकेला रास्ता है टू सेव हिम, उसे बचाने का. इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. इनफैक्ट आई थॉट, मैंने सोचा इट बेस्ट, ये अच्छा रहेगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी के उसे ले जाया जाए. एंड फॉलोड बाय मिसिज पंफ्रेज वेलिंग्स, और उसके साथ साथ फॉलो हुआ, मीन्स वहाँ से जब मैं चला, मिसिज पंफ्रे की वेलिंग्स. रुदन क्राई स्लोली. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. आई मार्च्ड आउट, मैं चला, टू द कार की ओर, कैरिंग, लिए हुए उस छोटे कुत्ते को, रैप्ड, जो लिपटा हुआ था, इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में. द एंटायर स्टाफ वॉज roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast owl, lunch bowl, super bowl. The entire staff was roused. Entire staff जो है वो जाग गया था. His maids rushed in and out. उनकी जो maids थे, नौकर, कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर. bringing his day bed, उसका day bed ला रहे थे, रात का बेड ला रहे थे, फेवरेट तकिए ला रहे थे, खिलौने, रबर रिंग्स ला रहे थे, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का कटोरा, लंच का बाउल, सुपर बाउल, सभी लेकर आए थे. रियलाइज दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. ये जानकर कि मेरी कार इन सभी सामान को नहीं उठा पाएगी, स्टफ सामान. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसिज पंफ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो. As I moved off, जैसे ही मैं चला, मिसिज पंफ्रे with a despairing cry, despairing, निराश, जो क्राई थी उसकी निराशापूर्ण चीख, रोना. रुदन थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स, उसने लिटिल कॉर्ड्स, छोटे छोटे कॉर्ड्स थे, उनकी एक आर्मफुल जो उसकी बाजू में आई, वो एक अंदर फेंका. थ्रू द विंडो के द्वारा. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. आई लुक, मैंने देखा इन द मिरर में, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जैसे ही मैं ड्राइव करते हुए कॉर्नर से मुड़ा, उससे पहले एवरीबडी वाज इन टीयर्स, के सभी आंसुओं में थे, मीन्स सभी रो रहे थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out on the road, रोड पर I glanced मैंने नज़र डाली, looked closely down at the pathetic, एक दयनीय उस लिटिल छोटे से जानवर पर, gasping जो on the सीट पर हाँफ रहा था by my side मेरे साथ में. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. I patted the head, मैंने उसके सिर को थपथपाया, and Tricky made, और Tricky ने एक बहादुरीपूर्ण एफर्ट प्रयास किया to wag, to shake, हिलाने का his tail, अपनी पूंछ को. Poor old lad, बेचारा बूढ़ा. lad मीन्स यहाँ बॉय, लेकिन यहाँ डॉग के लिए प्रयोग किया गया. I said, मैंने कहा, you haven't a kick in you but I think I know a cure for you, कि आपके पास कोई किक मीन्स एक्साइटमेंट, जोश नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एक क्योर, एक इलाज फॉर यू, आपके लिए. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी. एट द सर्जरी मीन्स एट द हॉस्पिटल, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो डॉग्स वहाँ थे, सर्ज्ड अराउंड मी, वे मेरी ओर दौड़े, चार्ज्ड अराउंड मी, उमड़ना. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Tricky looked down, Tricky ने नीचे देखा, at the noisy pack means यहाँ group of dogs with dull eyes, बड़ी निराश आंखों से देखा, and when put down, और जब उसे नीचे रखा गया, उतारा गया, lay motionless, लेट गया, motionless, गतिहीन होकर, on the carpet bed. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. The other dogs, दूसरे कुत्ते, after sniffing means उसे सूंघने के बाद, round him, उसके चारों ओर घूमने के बाद, for a few seconds, कुछ seconds के लिए, decide किया, he was an uninteresting, वह एक अरुचिकर object है, and ignored him, उसे उस पर ध्यान नहीं दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. I made a bed, मैंने उसके लिए बिस्तर बनाया, for him, उसके लिए, in a warm loose box, एक गर्म लूज ढीले ढाले बॉक्स में, next to the one where the other dogs slept, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे, उससे ठीक आगे. For 2 days I kept an eye on him, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी, giving him no food, उसे ज़्यादा फूड नहीं दिया, but plenty of water, लेकिन बहुत सा पानी दिया. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. At the end of the second day, दूसरे दिन के अंत तक, he started to show, उसने दिखाना शुरू किया, some interest, कुछ रुचि in his surroundings, अपने आसपास के वातावरण में, and on the third, और तीसरे दिन, he began to whimper, उसने whimpering, making low crying, थोड़ी धीमी आवाज़ करनी शुरू की, when he heard the dogs in the yard, जब उसने आंगन में dogs, कुत्तों को सुना. Students, we have studied half part of the chapter. In the next video, we will study the remaining part of the chapter. Till then, thank you. Have a nice time.